Good morning, one and all. So, Morning, sir. uh, good morning, good morning. So, I think till date, all of you are knowing that what are the phagocytic cells in our body and how they try to eliminate pathogen or any foreign substances from our body. So, what is the mechanism behind that? We will see today. Okay, the phagocytosis and the complement, which is an important part of non-specific defense mechanism. Okay, so let's see. So, what is phagocytic process? So, already we are knowing that phagocytosis is a process which proceeds through a series of associated steps, that is attachment of the particle of the cell surface, then internalization and intracellular killing or the digestion of the foreign agents. Okay, so you see how they how they participates, that the invagination of these phagocytic cells. Okay, they form a pseudopodia, then they internalize these bacterial cells within these, and how the process occurs we check. So basically, let me elaborate it first. So there are 7 steps. Okay, what are those 7 steps? So first is the chemotaxis and adherence of microbe to phagocyte. In this process, the phagocytic cell migrates towards the pathogen or any foreign particle under the influence of chemotactic factor. Secondly, still some of the students are joining up. Secondly, what happens? Adherence or recognition. Okay. So in this phase, phagocytic cell adheres to the pathogen or foreign particle, as you had seen just right now. You just see adhesion. Okay. Then what happens? The third stage is ingestion. Okay, ingestion. After the ingestion, they form a phagosome. Okay, so ingestion can be subdivided into 2 or 3 stages, like the formation of phagosome. Then, when lysosome, when these phagosome is fused with the lysosome, then the formation of phagolysosome, and later on, these foreign particles broken down into smaller peptides, smaller short peptides, that is called the digestion or degradation. Okay, so basically the phagosome formation, then phagolysosome formation, where these the enzymes under these lysosome, they helps to digest these foreign particles, and after the digestion they broken down these pathogen or any foreign substance into smaller peptides, which is after the digestion they discharge the waste materials. Okay, so they discharge the waste materials, or some of the peptide fragments they retain on, they express on their cell surfaces with the help of MHC. Did you had you remind that term MHC, major histocompatibility complex? So with the help of MHC, they present some of the smaller peptides onto their cell membranes. Okay, so basically this is the phagocytosis steps. So if question is being asked, you have to answer with the diagrammatic representation so that you can do it in a very short time. So how they do help? So basically they help in the opsonization and phagocytosis process. So we all know that the Fc receptor or Fc receptor of the antibody, they helps in the opsonization. Then they also invite the complement receptors to adjoin those pathogens and to kill the pathogens. Okay, then other receptors for collectins like mannose binding proteins, okay, like MAST,
मैनोज बाइंडिंग एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीएज और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन वी से. So basically you see the cell membrane, we have already seen that what were the process of this phagocytosis in a phagocytosis process. What happens, how they internalize the cells, how they digest, and how they eliminate the waste materials. So what are the professional phagocytes? These are the macrophages or the monocytes. So basically inflammation, जहां कहीं भी हमारे टिश्यू में इंजरी होती है वहां पे इन्फ्लामेशन होता है. बेसिकली द इन्फ्लामेशन इज कैरिड आउट, इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड एज अ बायफेजिक रिस्पॉन्स, यानी टू फेजिक, मतलब जिसमें दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं. द फर्स्ट वन व्हेन द न्यूट्रोफिल कम्स एट द साइट ऑफ इंजरी, एंड सेकेंडरी these monocytes which are very little in number, less in number, slowly migrate in chronic inflammation. Monocytes and macrophages, they comes at the site of injury. Okay, so what are the function of these phagocytic cells? They ingest foreign materials, they kill bacteria and other microbes, they degrade necrotic tissues and foreign antigens. Necrotic means dead tissues, okay, and foreign antigens. Then tissue damage during prolonged inflammation in case of macrophages. When these inflammation are chronic in characteristics, then these monocytes or macrophages come at the site of injury to heal that particular space. Inflammation होता है to burn. Inflammation जो term है जब हम लोग यूज करते हैं उसका वो डिराइव हुआ है इन्फ्लामेयर से. इन्फ्लामेयर्स होता है बर्न करना, जलना, ठीक है. तो बेसिकली यदि हम देखते हैं कोई भी कहीं पर भी आपको यदि चोट लगती है तो देयर आर 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन दैट कैन बी सीन. दीज आर, क्या होता है, जो 5 कार्डिनल साइंस होते हैं वो है हीट, कैलर, ड्यूबर, ट्यूमर, डॉलर एंड फंक्टियोलाइसो. ठीक है, इसको एक लैटिन भाषा में क्या, ये एक लैटिन वर्ड है जो गैलन ने दिया था, जो 5वां बाद में लेटर ऑन फंक्टियोलाइसो इंक्लूड हुआ. लेकिन ये जो 5 है इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको कहीं भी चोट लगती है तो वहां पे आप हीट, मतलब थोड़ा सा आप हीट फील करते हैं, मतलब गर्माहट फील करते हैं. लेकिन इन केस ऑफ फिश वी डू नॉट, बिकॉज दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, दे डू नॉट रिलीज एनी काइंड ऑफ हीट. ठीक है, तो इस 5 कार्डिनल साइंस में क्या नहीं होता है, हीट नहीं होता है. ठीक है, देन पेन होता है, फिर क्या होगा, रेडनेस होगा, जो पर्टिकुलर जो स्पेस होगा वो आप देखेंगे कि रेड, कभी कोई थप्पड़ यदि मारे तो क्या होता है, वो एरिया लाल हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा गर्म लगना शुरू हो जाता है, फिर पेन भी होना शुरू हो जाता है. और क्या क्या होते हैं, तो ये जो होता है आपका जो हीट जनरेशन हुआ, या फिर आपका ट्यूमर यानी स्वेलिंग, ट्यूमर कहने का मतलब है स्वेलिंग, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है. तो हम 5 फंक्शंस बता रहे हैं कार्डिनल साइंस इन्फ्लामेशन के, आप चाहे तो लिख सकते हैं. वो क्या होता है, हीट होता है, दूसरा होता है पेन होता है, दर्द होता है, तीसरा क्या होता है, रेडनेस होगा वहां पे. ठीक है, चौथा क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और 5वां क्या होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, अपना फंक्शन नहीं शो करेगा. तो ये 5 जो है कार्डिनल साइंस होते हैं किसी भी इन्फ्लामेशन. तो बेसिकली क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, यानी कि कुछ तो साइटोकाइंस, कुछ कीमोकाइंस होंगे जो इस इन्फ्लामेशन को मीडिएट करते हैं. सो दीज आर बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, साइटोकाइंस, ब्रेडिकाइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स. यानी कि ये सही समय पर, यानी कब वहां पे हीट लानी है, कब वहां पे कलर डेवलपमेंट होना है, इसके बाद आप देखते हैं धीरे 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 रिसाइड हो जाता है. तो देयर आर सर्टेन एजेंट्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, दे सबसाइड्स दिस इन्फ्लामेशन, क्योंकि यदि ज्यादा देर तक इन्फ्लामेशन रहेगा तो भी पेन होगा. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर एडेप्टिव इन फीचर्स.
तो होता क्या है बेसिकली, बेसिकली इस इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में यहां पर इमीडिएट इंक्रीज हो जाता है ब्लड सप्लाई का, जिसके कारण वहां पर रेडनेस दिखने लगता है, ठीक है। So there is an immediate increase in the blood supply to the area. Later on, जो कैपिलरी जंक्शन के बीच में जो इंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो कैपिलरी जंक्शन होता है, उसको वो ओपन करता है। ओपन करने के बाद क्या होता है, वहां से जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो वहां एट द साइट ऑफ इंजरी स्केप होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिलरी परमेबिलिटी के रूप में, मतलब जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर देता है। तीसरा क्या होगा, अब ये तीसरे जगह में क्या होता है, अब यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स यानी एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू एंडोथेलियल सेल्स एंड फॉलोड बाय इमिग्रेशन ऑफ फेगोसाइट्स एंड अदर टिश्यूज, ये होता है, ठीक है। समझ में आया इन्फ्लामेशन? क्लियर है या नहीं? व्हाट इज व्हाट डज इन्फ्लामेशन मीन्स, डू यू किसी को समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं सिर्फ बताता जा रहा हूं। खैर, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के बारे में हम लोग आते हैं, तो वो तो इन्फ्लामेशन था। जब फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के बारे में आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, तो बेसिकली देयर आर सर्टेन एंजाइम्स दे पार्टिसिपेट्स इन दिस होल डाइजेशन प्रोसेस, and the digestion of these foreign agents occurs due to certain enzymes like NADPH oxidase, superoxide dismutase, which with the help of NADPH oxidase and superoxide dismutase, they form hydrogen peroxide, which itself is a microbicidal, and superoxide जो ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं वो सुपर ऑक्साइड एनायंस बनाने के कारण भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, क्यों, बिकॉज दीज बाइंड्स विद द बैक्टीरियल सेल सरफेस, द एक्टिव मोieties ऑफ बैक्टीरियल सेल सरफेस। हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो Fe है उसके साथ बाइंड कर जाएंगे और डिप्राइव कर देगा, जो साइडेरोफोर्स हैं उनके साथ बाइंड करने के कारण क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो कीमोट्रॉप्स हैं वो इस फर्दर आयरन का यूज नहीं कर पाएंगे अपने एसेंशियल जो मेटाबॉलिज्म होती है उनकी, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, दे विल डिप्राइव ऑफ these iron molecules to utilize for their daily metabolism. Okay, then myeloperoxidase, they ये जो एंजाइम होते हैं माइलोपेरोक्सीडेज, ये फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं हाइपोक्लोराइट आयंस में। हाइपोक्लोराइट आयंस यानी यहाँ पे आप देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है जो इटसेल्फ माइक्रोबिसाइडल, ठीक है। हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड जो ब्लीचिंग इफेक्ट जो देखते हैं, तो हाइपोक्लोराइट आयन जब रिलीज किया देन अगेन दे विल बी किल्ड। तो बेसिकली दिस इज द chemical reaction that occurs within these phagocytic cells is the formation of superoxide anions, then the formation of hydrogen peroxides, then free hydroxyl radicals also being formed, and at last the hypochlorous acid formed. Okay, due to the presence of myeloperoxidase activity. मैंने आपको बताया भी है myeloperoxidase activity कहाँ पे होती है और catalase activity कहाँ होती है। बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स होंगे वहां माइलोपेरोक्सीडेज एक्टिविटी इज सीन, ठीक है। इसलिए न्यूट्रोफिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग माइलोपेरोक्सीडेज टेस्ट करते हैं, ठीक है। और कैटालेज कहाँ पे होता है, तो मोनोसाइट या फेगोसाइटिक ये मैक्रोफेजेज। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, यू हैव टू रिमाइंड दैट। सो ये जितने भी आप देख रहे हो, चाहे सुपर ऑक्साइड एनायन हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हो या हाइपोक्लोरस एसिड हो, all these are very hazardous for the microbes. They kill the microbes, they digest the microbes. So basically apart from that there are certain proteins like bactericidal proteins, this is defensins और serine proteases, metalloproteinases, acid hydrolases। तो ये सब सारे जितने भी हैं ये आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन और किलिंग में माइक्रोब्स के, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े, कंप्लीमेंट सिस्टम थोड़ा सा देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एक पिक्चर इमेज देख रहे होंगे, ये मैक, हम लोग बराबर टर्म यूज करते आ रहे थे मैक। मैक मीन्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी हाउ
कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज अ, हम लोग बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट मतलब इन सपोर्ट, इन सपोर्ट ऑफ अदर इम्यून सेल्स, जो प्रोटीन सपोर्ट करते हैं दूसरे फेगोसाइटिक सेल्स को या एंटीबॉडीज को किल करने के लिए, उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये बेसिकली सर्टेन सम प्रोटीन्स हैं, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ बस अभी जल्दी बोलिए, क्लास में कहाँ का जा रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, तो वहां पे मिल जाएगा तो ले लीजिएगा वहां पे। आप हैं वहां पे? मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट। सर आवाज नहीं आ रही थी बीच में। ठीक है, अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? टू हेल्प, ठीक है ना, टू असिस्ट, यानी कि ये असिस्टेंस में हेल्प करता है किसके? तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने में। यानी कि बैक्टीरियल सेल, यहाँ देखो आप कैसे, एक ये बैक्टीरियल सेल है लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, और कैसे इसने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया? एक होल क्रिएट कर दिया। तो कैसे ये प्रोटीन्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेट करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, complement is one of the important components of innate immune system and consists about or more than 35 soluble and membrane bound proteins। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल के, वो प्रोटीन उस मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होती है, और 35 soluble प्रोटीन्स होते हैं जो आपके ह्यूमोरल फैक्टर्स, जब आप लोग को कभी आता है ह्यूमोरल फैक्टर्स लिखने के लिए तो कॉम्प्लीमेंट भी एक उसमें हो सकता है, ठीक है। So there are these consists of about more than 35 soluble and membrane bound proteins and cell receptors which plays a critical role in the host defense by interacting with components of both the innate and acquired immunity। Clear? अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। सो कॉम्प्लीमेंट इज अ बायोकेमिकल कास्केड। बायोकेमिकल कास्केड मतलब, कहने का क्या मतलब है? एक बायोकेमिकल चेन ऑफ रिएक्शन है विच हेल्प्स और कॉम्प्लीमेंट्स द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू क्लियर पैथोजेंस फ्रॉम एन ऑर्गन। यानी कि कैसे ये एंटीबॉडी को, हम लोगों ने एंटीबॉडी का यदि फंक्शन याद होगा तो वो क्या करते हैं? हेल्प्स इन ऑप्सोनाइजेशन और एफसी बेस्ड इंटरेक्शन, एफसी रिसेप्टर इंटरेक्शन जो होता है, तो ये करते क्या है? ये एंटीबॉडीज को तो हेल्प करते ही हैं पैथोजेंस को क्लियर करने में, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करते हैं, और अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जिनसे वो पोर फॉर्मेशन हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में, एंड बैक्टीरिया गेट lysed। Clear? So basically these, they contains more than 30 or 35 soluble proteins, cell bound proteins, participates in both innate and adaptive immunity, produced by hepatocytes means liver cells। Okay, then monocytes, यानी मोनोसाइट भी ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लीवर सेल्स ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसको हम लोग गाल्ट या गियाल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, यानी गिल्स में है। तो ऐसे कुछ जो लाइनिंग्स होती हैं वो इस तरह के प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। बेसिकली दे कंस्टिट्यूट 5% बाय वेट ऑफ द सेरम ग्लोबुलिन फ्रैक्शन, यानी सेरम ग्लोबुलिन का 5% जो है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। मेनी कंपोनेंट्स आर प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स कहने का क्या मतलब है? दोज एंजाइम्स व्हिच आर नॉट एक्टिव। ओके, so many components are zymogens or proenzymes, inactive enzymes, which are functionally inactive until proteolytic cleavage, which removes an inhibitory fragment and exposes the active site। What does it mean? कि मतलब ये जो inactive enzymes होते हैं, ये inactive enzymes, ये यहां पर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर
जो कोई भी प्रोटीन होगी वो आकर के इस पर एक्ट करेगी, वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर उसमें लार्जर फ्रेगमेंट बन जाता है, एक स्मॉलर फ्रेगमेंट बन जाता है। स्मॉलर फ्रेगमेंट का काम कुछ और हो सकता है, लार्जर फ्रेगमेंट का काम है फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करना या ये हेल्प करना। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एंजाइम कास्केड के रूप में यूज करता है, यानी कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन पे एक्ट करता है, दूसरा प्रोटीन तीसरे प्रोटीन पे एक्ट करेगा और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता चला जाएगा और ये साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना शुरू करता है। बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? So basically they participate in lysis of bacteria and infected cells. They helps in opsonization to enhance phagocytosis. ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये सिंथेसिस कहाँ कौन कौन करते हैं? जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती है कहाँ सिंथेसिस होती है? तो लिवर सेल्स में होती है। फेगोसाइटिक सेल्स जो है वो सिंथेसिस करते हैं। देयर आर सर्टेन फिक्स्ड लाइनिंग सेल्स, फिक्स्ड इम्यूनोजेनिक सेल्स लाइक आपके गाल्ट हो गए या माल्ट हो गए, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जितने भी हैं, ठीक है, म्यूकॉइड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये जो है जो लाइनिंग्स है वो सिक्रीट करती है। तो यही आपके लाइसिस में, ऑप्सोनाइजेशन में, कीमोटैक्सिस मतलब दे इनवाइट, ओके, so they helps in the movement and migration of leukocyte at the site of injury. तो कीमोटैक्सिस, ठीक है, कीमोटैक्सिस में पार्टिसिपेट करते हैं जहां पर फेगोसाइट अट्रैक्ट होगा, एक्टिवेट होगा। देन दे पार्टिसिपेट इन द क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है उनको क्लियर करना। क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल, एपोप्टोटिक सेल मीन्स जो सेल्फ डेथ, जो सेल्फ डेथ और डिकेड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनको क्लियर करना। क्लंपिंग ऑफ एंटीजन बियरिंग एजेंट्स, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया उन क्लंपिंग को क्लियरिंग करना। देन अल्टरिंग द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, तो कैसे ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जो वायरस के मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो चेंज कर सकता है, कैसे शिफ्टिंग कर सकता है। तो बहुत ही इसका बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे फंक्शन है एक पोस्ट बॉडीज में। अब डेट्रीमेंटल क्या है? इफ इन्फ्लामेशन इज इन इन्फ्लामेशन एक्सीड्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये क्या होता है? देन अगेन इट इंजर्स द नाइबर हेल्दी सेल्स, जो नाइबर रेसिड्यू जो हेल्दी सेल्स होंगे वहां पर हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है कि सडन स्टंट हो जाना, ठीक है, बॉडी। एनाफाइलेक्सिस इज अ जनरली फिजियोलॉजिकल फेनोमेना व्हेन बॉडी इज स्टंट, ठीक है, स्टंट हो जाता है, वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता है और रैसेस आ सकते हैं। आप देखते हो इमीडिएट रैसेस आ गए या फिर कुछ थोड़े देर के लिए यदि मिर्गी उर्गी आती है तो देखते होंगे कि शरीर पूरे अकड़ जाता है ना। तो दीज आर द एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, तो सडन चेंज इन द फिजियोलॉजी that is not able to cope up by our body, ठीक है। So basically there are three system, the complement system participates in three functions. They participates in innate immunity. How? Because they helps in opsonization, they participate in the lysis of pathogens, they helps in chemotaxis, they are the main player in the inflammation, and they activate various phagocytic cells and leukocytes. Disposal system kaise? Because they participate in the clearance of immune complexes and apoptotic cells. Then how they are important for the adaptive immunity? So they generally they augment the antibody response, okay, so proliferation of antibody. Then promotion of T cell response, तो टी सेल साइटोटॉक्सिसिटी या टी सेल जो हेल्पर सेल्स होंगे कैसे उनको प्रोमोट करते हैं? दे एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज जो होते हैं, ऑटो इम्यूनोजेंस, ठीक है, जो ऑटो एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी सेल को किल करते हैं, तो उनको भी एलिमिनेट करने का काम यही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स करते हैं। एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमोरी,
तो ये मेमोरी को और भी ज्यादा इनहेंस करती है। ओके, तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट जो जितने भी प्रोटीन, सो दीज आर द soluble proteins, more than 35 soluble proteins. They secrete membrane bound proteins. They are secreted by whom? The T cells, B cells, dendritic cells, macrophages, mast cells, monocytes, neutrophils. You see, there are various types of cells involved in the complement fixation and activation. Okay. Then we simply see what are the proteins of the complement system. Basically, there are three. Basically, there are C1 to C9, complement 1, complement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So basically C1 having 3 subtypes, that is C1Q, C1R and C1S. तो कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। Apart from that, there are certain factors like factors B, D, H and I. Okay, so these are properdine basically. Okay, then third one is mannose binding lectin. Mannose binding lectin associated serine proteases called MASP1 and MASP2. These are two proteins. These are two serine proteases. Okay, so basically these are derivatives of these mannose binding lectins. Then C1 inhibitors, C4 binding proteins, decay accelerating factors, complement receptor, protein S. So there are several proteins. So basically we will see what are these pathways of complement activation. So as we all know that there are three pathways. One is classical complement pathway, CCP. Okay, so this is antibody dependent pathway, and another one is alternative complement pathway, and another one is lectin pathway. Both these are antibody independent pathway. कहने का क्या मतलब है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी किसी भी पैथोजन के साथ बाइंड करेगी और जो एफसी रिसेप्टर होगा, एफसी याद कीजिए, फैब और एफसी, एफसी जो पार्ट होता है वो क्या करता है? ये पार्टिसिपेट करता है किसमें? तो ये C3 को कन्वर्ट कर देता है और जनरेट क्या करता है? C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 कन्वर्टेज क्या है? एक्टिवेशन। ये जो C3 है, इस C3 को हम लोगों ने देखा था ना कि C1 to C9 था यहाँ पे, है ना, C1 to C9। तो ये C3 को क्या करता है? C3 को एक्टिवेट करके और C5 कन्वर्ट करता है, ठीक है। C5 कन्वर्टेज इज एन एंजाइम, सो दे बेसिकली दे जनरेट C5 कन्वर्टेज। जब ये C5 कन्वर्टेज बन गया तो ये कन्वर्टेज जो C5 कन्वर्टेज एंजाइम है ये एक्टिवेट करेगा C5 को, और जैसे ही C5 एक्ट करेगा तो लाइटिक अटैक पाथवे वो किल हो जाता है, लाइटिक अटैक पाथवे वो फॉर्म हो जाता है, जिसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि बेसिकली जो मतलब सेंट्रल मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट के कौन से होते हैं? तो बेसिकली दिस इज C3 कॉम्प्लीमेंट। ये जो C3 मॉलिक्यूल होता है ना, ये सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है किसी भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। दे हैव टू बी एक्टिवेटेड, दे हैव टू एक्टिवेट। once they will be activated then the generation of C5 convertage will occur। तो ये आपके C3 जो है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी यहां पर ब्रेकडाउन होना ही होना है, चाहे वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट हो या एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट हो। ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट में किस तरीके से होगा और एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट में कैसे होगा? यदि एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो अदर फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे सर्टेन, जैसे फंगल है, फंगस में बीटा ग्लूकन प्रोटीन होता है, तो बीजीबीपी बीटा ग्लूकन बाइंडिंग प्रोटीन, अभी हम लोगों ने देखा था बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम C1 to C9, तो दे बाइंड विद दिस, और वो बाइंड करने के बाद फिर वो एक्टिवेट करते हैं C3 को, ठीक है। सो बेसिकली C3 इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल इन कॉम्प्लीमेंट, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्लासिकल पाथवे में देखते हैं, ठीक है। होता क्या है हम लोग देखेंगे इसको, जिनको नहीं समझ में आया होगा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आप इसको इस
तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ये मान लीजिए एक C4 मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पे क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे करता क्या है, यहां पे जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ बाइंड की, ये बाइंड करने के बाद इसका जो पोर्शन होता है एंटीबॉडी का FC पोर्शन, वो बाइंड किसके साथ करेगा, C1 के साथ। क्लियर। इसके बाद क्या करेगा, ये C1 एक्टिवेट हो जाता है। हमने आपको पहले ही बुलाया था, दिस इज अ बायोकेमिकल कास्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब ये जो C1 है, ये C1 एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ये एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करेगा C1 के साथ, ये C1 एक्टिवेट करेगा, और ये C1 जैसे ही एक्टिवेट किया, इसके दो फ्रेगमेंट बन जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, C1A C1B जो भी है, ठीक है ना। तो ये स्मॉलर फ्रेगमेंट ये A को डिनोट कर रहा है। आप देखिए, स्मॉलर फ्रेगमेंट A हो गया और ये लार्जर फ्रेगमेंट B हो गया, ठीक है। ये C1 क्या करता है, अब ये एक्ट करता है C2 पे, ठीक है। ये बना देगा क्या, C3 कन्वर्टेज। कैसे बनाएगा C3 कन्वर्टेज, तो C3 कन्वर्टेज एक्चुअली है क्या, C3 कन्वर्टेज है C4B2A। कहने का क्या मतलब है, जो C4 का कंस्टिट्यूएंट होगा, जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा, आप लोग समझ रहे हैं ना। हेलो, Yes, sir. जो C4 होता है, C4 दो फ्रेगमेंट में टूटेंगे यहाँ पे, ठीक है। C जो बड़ा पोर्शन हो जाएगा वो C4B हो गया, ठीक है। और ये बाइंड किसके साथ किया, C2A के साथ बाइंड कर गया, ठीक है। यानी यहां पे जो C2 का स्मॉलर फ्रेगमेंट है और C4 का जो लार्जर फ्रेगमेंट है, ये B किसके साथ, A के साथ बाइंड किया। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या किया, C4B2A, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली इसका जो बड़ा फ्रेगमेंट होता है, ये एग्जैक्टली इसके कॉम्प्लीमेंट होता है, किसके, 2A के, इसलिए ये टोटल चूंकि कॉम्प्लीमेंट ही है, ठीक है। तो C4B2 इज अ C3 कन्वर्टेज। आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, चाहे JRF क्वेश्चन में आए, नेट में आए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C3 कन्वर्टेज, तो ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, C3 कन्वर्टेज में। एक्ट कौन किया था, C1 किस पे एक्ट किया था, C2 पे, ठीक है। C4B2A बना लिया। C3 कन्वर्टेज का काम क्या है, कन्वर्टेज करने का मतलब ये अब एंजाइम हो गया, ये एंजाइम अब एक्ट करेगा C3 पे, ठीक है। C3 को अब डिवाइड कर देगा किसमें, स्मॉलर फ्रेगमेंट में और लार्जर फ्रेगमेंट। क्लियर। जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा C3B हो गया, और स्मॉलर फ्रेगमेंट क्या हो गया, C3A। गुड। तो C3 टूटा C3A में, C3B में। जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा C3B, अब वो बाइंड किसके साथ करेगा, अब ये बाइंड करेगा किसके साथ, देखिए यहां पे C4B2A था, यहां पे C3 कन्वर्टेज था ना। अब ये बाइंड कर गया किसके साथ, कन्वर्टेज बनने के बाद ये C3 पे एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद जो इसका बिग पोर्शन था, जो बड़ा पोर्शन था C3B, ये इसके साथ बाइंड कर गया। तो यहाँ क्या बना लिया, C4B2A3B, ठीक है। क्लियर। तो C4B2A3B बना लिया, C5 कन्वर्टेज बना लिया। अब जैसे ही C5 कन्वर्टेज बनाया, ये एक्ट किया C5 पे, और C5 ब्रेक डाउन हो गया C5B में और C5A में। C3A और C5A का काम क्या है, एनाफाइलेक्सिस करना। एनाफाइलेक्सिस करने का मतलब एनाफाइलेक्सिस, और इसके साथ साथ वो क्या करेगा, दे हेल्प्स इन द इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। कीमोटैक्टिक के रूप में वो काम करते हैं। दीज आर कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स, इन शॉर्ट यू कैन से, ओके। अब ये जो C5B फ्रेगमेंट है, ये किसके साथ बाइंड कर गया, जैसे ही C5B फ्रेगमेंट बना, ये क्या करेगा, दे इनवाइट अदर सेल्स लाइक C6, C7, C8, C9, दे ज्वाइन टुगेदर, दे फॉर्म मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। हम लोग इसको देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। देखिए बेसिकली होता क्या, क्लासिकल पाथवे हम लोग बात कर रहे थे। ये मेम्ब्रेन सेल है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड कर गए एपिटोप पे। हेलो, दिस इज Yes, sir.
समझ लीजिए बैक्टीरियल एपिटोप्स हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियल एपिटोप्स हैं। एपिटोप्स के साथ ये फैब पोर्शन बाइंड किया एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी बाइंड करने के बाद ये पोर्शन कौन सा हो गया, एफसी, एफसी पोर्शन हुआ ना। ये एफसी पोर्शन के साथ अब क्या बाइंड कर गए, यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कौन कौन सा है, तो C1, C1 में क्या क्या था, C1Q, C1R, C1S इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ये बाइंड कर गए एफसी से। अब क्या होता है, अब देखिए C1S ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे क्या करता है, C4 आकर के ज्वाइन किए, C4 ब्रेक डाउन हुआ, स्मॉलर फ्रेगमेंट C4A में और C4B में, क्लियर। C4B क्या करेगा, C4B फिर एक्टिवेट करेगा, मतलब किसको सॉरी किसके लिए कीमोटैक्सिस का काम करेगा, C2 के रूप में, ये कॉम्प्लीमेंट टू प्रोटीन। C2 आया, अब ये क्या किया, ये C2 दो स्मॉलर फ्रेगमेंट में 2A और 2B टूट गया। अब 2A कहां चला गया, C4B और C2A, यही फॉर्मेशन कर दिया ना C3 कन्वर्टेज, C4B2A लिख सकते हैं हम इसको, क्लियर। नाउ सी दिस इज द C4B2A is C3 convertage, okay now see the C3, अब वहां पे ये एक्ट किस पर किया, C3 पे, जैसे ही C3 वहां से इमिग्रेट हुआ, कीमोटैक्टिक के रूप में काम कर रहा है, ये C3 को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया, C3A में, C3B में, C4B बना, C2A बना। अब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं C4B2A3B लिख सकते हैं ना। देन दिस इज C5 कन्वर्टेज, इट लीड्स टू मेम्ब्रेन अटैक पाथवे। कैसे, तो देखिए कैसे बनता है,